This UAP session is specially for IITians who are planning to give the 2027 attempt. Now, we all know that IITians dominate the UPSC final results, and it's not surprising. What is surprising is the fact that the best IITians take 5 to 6 years of prep to make it to the final list. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने एक similar exam पहले attempt किया है JEE, and you understand the nuances of examinations in India, right? You understand the fact that academics कहाँ खत्म होते हैं, strategy कहाँ शुरू होती है, exam की demands कैसे समझें, competition को कैसे assess करें, all these minute understandings are clear with you. तो आपको इतना ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए UPSC crack करने पे. Now, it is again not surprising that Civils Delhi ecosystem has tons and tons of IITians. अगर हम इस साल की कुछ लोगों की बात करें, AR49 Tarun, IIT Delhi Computer Sciences. You have Akash Om Trivedi. He's somewhere in the 60s. IIT Kanpur grad. Then you have Rahul Shekhar, 75, IIT Kanpur MEC. ये सारे IITians, as we go down the ranks, the number increases further, right? अब इन सब लोगों से हम लोगों ने कुछ बातें समझी हैं. Primarily, there are two macro factors that inhibit your success in UPSC. The first macro factor, the fact that your left brain, logical, analytical brain, is more developed than your right brain. The philosophical, the abstract constructs wala jo brain hai, that's the right brain, right? Unfortunately, UPSC is all arts subjects and it is inclined towards the right brain, right? The second macro factor is the fact that your inability to express yourself. आपका लैंग्वेज पे इतना कमांड डेवलप नहीं हो पाता है कि आप अपने थॉट्स को पेपर पे प्रेजेंट कर पाए. आपको सारी बातें समझ आ गई, आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल नोशन समझ आ गए, राइट? बट यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग दोज थॉट्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दैट इज अ मेजर चैलेंज. और यही गैप फिल करते करते 5 to 6 years निकल जाते हैं. We believe that with the right mentorship, with the right mentor, the best of the mentors on your side, and a solid system backing your preparation, आप एक साल में ये एग्जाम निकाल सकते हैं. Let's look at UAP. सबसे पहली बात, Ultimate Assessment Program is the only year-long mentorship program that has consistently produced rankers. Given the environment today, the fact that bulk of students who join UAP are first timers और उन्होंने कुछ कुछ ऊपर से पढ़ाई कर रखी होती है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर फर्स्ट टाइमर्स. एंड फर्स्ट टाइमर्स के अगेंस्ट यूपीएससी खुद बायस्ड है. देयर आर हार्डली 1 to 2% एस्पिरेंट्स हु आर फर्स्ट टाइमर्स एंड हु आर क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम, राइट? सो इस एनवायरमेंट में अगर हमारे 1 से 2 रैंक हर साल आ रहे हैं, इट्स अ बिग डील. If we contrast the stat with other mentorship programs, year-long mentorship programs, it's flat zero, right? Those programs are still figuring out how to get ranks, क्या components होने चाहिए. They are all half-baked, right? अगर हम year-long foundation courses की बात करें, yes, there are a lot of foundation courses who end up claiming ranks, but there's a caveat. वो foundation course rankers ने 5 साल पहले 6 साल पहले किया होता है, राइट? अगर हमें ये नंबर क्वांटिफाई करना हो, फाउंडेशन कोर्सेज का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है रैंक्स में, इट वोंट बी मोर देन 3 to 4%, राइट? आप आज फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, 5 साल बाद आपकी एक रैंक आ रही है. इस फाउंडेशन कोर्स का क्या मतलब है? इसके बाद आपने इतने सारे एडवांस कोर्सेज किए हैं, इतनी स्किल फाइन ट्यून की है, राइट? प्रॉब्ली यू हैव कम टू मेंटरशिप प्रोग्राम्स एज वेल. फाउंडेशन कोर्स का वैल्यू वहां खत्म हो जाती है, राइट? फाउंडेशन कोर्स से अगर इमीडिएटली रैंक निकली इन द सेम ईयर, देन यू कैन क्रेडिट इट, एंड नन ऑफ दैट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट, राइट? सो दैट्स अ बिग जीरो देयर. आगे चलते हैं. लेट्स लुक एट व्हाट रैंकर्स हु हैव गॉन थ्रू आवर मेंटरशिप हैव टू से अबाउट अस, राइट? आप अनिमेश की देखिए. थैंक यू फॉर बीइंग द टीम दैट प्रोवाइडेड इमेंस सपोर्ट थ्रू आउट द लास्ट 2 years of my journey. Animesh was supported throughout 2 years of his preparation journey. He is a UAP student and he acknowledges all the support that is provided, right? Contrast करते हैं राघव के साथ. Raghav is All India Rank 4 this year, right? He writes Rohit sir for TAS framework in essays
and X Factor drops, Shikhar sir for review of ethics copy, Saket sir O2O interventions. इस टाइम पे प्रिपरेशन इतनी ज्यादा, आप कह सकते हैं इतना टाइट कंपटीशन है that value addition has to be immense, right? So you can see that Raghav is specifically pointing out कहां पे value addition हुआ है, किन लोगों ने आपके लिए competitive advantage create करने की कोशिश की है. That is what mentorship today is all about. और थोड़ी टेस्टिमोनियल्स देखते हैं. AR75 राहुल शेखर he's an IITian, इन्हीं की हम लोगों ने अभी बात की थी. And he writes about Rohit sir, about Arvind sir, everyone, and says that even if he wasn't, इस बार अगर वो successful नहीं भी होते, deep down he knew that he had evolved a lot and there was a substantial difference in this attempt of his, right? If you look at Lakshay, AR164, he is going to give the attempt again to improve his rank and he is still preparing the civils daily. He says, I'm absolutely thrilled by the sheer amount of research and analysis the team does in simplifying UPSC preparation. यही पूरा गेम है. Research, analysis, coming up with the best content, coming up with things that have high hit ratios, right? We are constantly on top of that. Now, we have only one single goal. आपका एग्जाम लीस्ट पॉसिबल टाइम में निकाले, राइट? एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटीज हम इंक्रीज करें लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए. एंड दिस इज इजियर सेड देन डन. बोलना बहुत आसान है, इसको करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, राइट? इट ब्रेक्स डाउन इनटू दीज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक्सपोज यू टू टूल्स दैट टेक 5 to 6 years टू मास्टर. आपकी ट्रेडिशनल जर्नी कुछ इस तरह से दिखेगी. फर्स्ट 1.5 years यू आर डूइंग फाउंडेशन कोर्स, राइट? आप हर दिन एक लेक्चर, एक सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड यू हैव 20 such subjects to cover up. So your first 1.5 years are gone. Your first year attempt is gone. आप clueless हैं, right? Now you are starting to hustle hard and you get to clearing prelims in your second attempt. This is the best case scenario. अब प्रीलिम्स तो निकल गया है बट आप रियलाइज कर रहे हैं कि मेंस में जितना एफर्ट आपको देना था आपने उतना नहीं दिया, तो उस अटेम्प्ट में भी आपका एग्जाम नहीं निकला. नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब आपका मेंस निकल रहा है. दिस इज व्हेन यू गेट लकी, राइट? अगर आप अनलकी हैं तो आपका एक बार प्रीलिम्स निकलेगा, अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, देन नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस हो जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अनलकी, राइट? सो इफ यू आर लकी तब आपके 4 to 5 years लग रहे हैं. नो, वी वांट टू कंप्रेस ऑल ऑफ दैट इन वन सिंगल ईयर. आप पैरेलल में बहुत सारी चीजें साथ साथ कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर रहे हैं. एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको फर्स्ट ईयर में समझाया जा रहा है. जितनी भी वैल्यू एडिशन आंसर राइटिंग में रिक्वायर्ड होती है वो सब आपको फर्स्ट ईयर में ही समझाया जा रहा है, जिससे कि आपका बेस्ट शॉट बने फर्स्ट ईयर में एग्जाम क्रैक करने का, राइट? सेकेंड, फॉल्ट फाइंडिंग एंड कोर्स करेक्शन. आपके पास एक प्लान है, उस प्लान में चलने पे आप बहुत सारी गलतियां करेंगे. वो गलतियां असेस करना हमारा काम है, राइट? इट्स गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. आप बात समझिए, ठीक है? आपको आइडिया नहीं है एग्जाम के बारे में, यू आर अ बिगिनर, राइट? आप नहीं इतना जल्दी समझ पाएंगे कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, राइट? आप अज्यूम करेंगे कि आपने ये गलती की है, right? This is the strategy, this is the wrong strategy, or this is the right strategy. These will be based on your assumptions and you don't have enough experience to take all those calls, right? So that specific portion will be outsourced to us, right? हम वो मेहनत कर रहे हैं कि आपको बताएं ये गलतियां हो रही हैं और ये नेक्स्ट टेस्ट में आपको गलतियां सही करनी है, right? Third and the most important one, chase exam readiness, not syllabus completion. बहुत बच्चों के अभी रैंक भी निकल आई है, वो अभी तक कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? यही यूपीएससी की ब्यूटी है, राइट? एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ एग्जाम रेडीनेस, आपको एक बात समझनी जरूरी है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ री इंजीनियरिंग. आप एग्जाम को रिवर्स इंजीनियर करते हैं. आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूपीएससी किन चीजों को अवॉर्ड कर रहा है, राइट? आप आंसर ए लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स आएगा, आप आंसर बी लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स आएगा. सो लॉट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व, राइट? व्हेन वी टॉक ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल स्टाइल, राइट? वही फाउंडेशन कोर्सेज,
वही फाउंडेशन कोर्सेज का जो एरा था, दैट वाज अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, कि हर सब्जेक्ट के आप 20-25 लेक्चर्स देखते रहिए. दैट इज वेरी फ्यूटाइल इन टुडेज डे. दैट इज वेरी फ्यूटाइल इन टुडेज डे एंड एज, राइट? नाउ दिस इज व्हाट योर 12-month टाइमलाइन इज गोइंग टू लुक लाइक. आपके पढ़ाई के 5 फेजेस होने वाले हैं, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दैट यू स्टार्ट एट, राइट? द फर्स्ट फेज, कोर बुक्स प्लस फाउंडेशन. सेकेंड फेज, GS वाइज PYQ टू माइक्रो थीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. दिस सेकेंड फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. आप सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट फेज से GS वाइज प्रेप में आते हैं सेकेंड फेज में, एंड यू आर हेविली इंक्लाइंड towards PYQs and micro themes, right? Third phase is when you get prelims ready. Fourth phase is between prelims and mains, जहां पे exclusively आप enrichment chase कर रहे होते हैं and you are trying to maximize your main score. Final interviews is the last stage. It is again a tough stage. It has a lot of nuances. We'll discuss that when we get there, right? अब हर phase में आपको कुछ बातें, जेनरिक मिस्टेक्स आप हमेशा करेंगे, कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफ स्पेंडिंग बल्क ऑफ देयर टाइम इन देयर फर्स्ट फेज इटसेल्फ, राइट? और वो काउंटर प्रोडक्टिव है. उनको ये लगता है मैं जितनी बार फाउंडेशन करूंगा, जितने डिफरेंट तरीकों से फाउंडेशन लेक्चर्स करूंगा, उतने ही मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग होते जाएंगे. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. फटाफट आपने 1-2 रीडिंग्स दी एंड यू स्विच टू रिविजन मोड. अब आप टेस्ट कर रहे हैं, अब आप डिफरेंट करंट अफेयर्स के थ्रू अपना स्टैटिक रिवाइज कर रहे हैं. दैट्स व्हाट द आइडिया हियर शुड बी, राइट? सेकेंड स्टेज इज वेयर यू शुड बी स्पेंडिंग बल्क ऑफ योर टाइम. आपको समझना जरूरी है दैट यूपीएससी की प्रायोरिटी लिस्ट बहुत डिफरेंट है कोर बुक्स से. कोर बुक्स अपनी पीडागोजी फॉलो कर रहे हैं, राइट? उनका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक लॉजिक से चलता है. यूपीएससी जिनको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 समझ रहा है, दोज माइक्रो थीम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड यू नीड टू स्विच गियर्स नाउ, राइट? यूपीएससी सबसे ज्यादा वेटेज देता है फंडामेंटल राइट्स को. इस पे आपको डबल डाउन करना जरूरी है, रादर देन आप पेज 1 से शुरू हो गए हैं, पेज 1000 तक आप कोर बुक्स पढ़ रहे हैं, राइट? तो दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नीड्स टू बी इम्बाइब्ड. Phase 3, prelims ready, smash mains. We will discuss more when we get in, right? UAP has these 4 broad mentorship strands. The first is timetable and planning. आपको एक broad day wise timetable मिलेगा based on your strengths and weaknesses. उसमें ये सारे targets, polity broken down into fundamental rights, DPSP, fundamental rights के लिए 4 days, DPSP के लिए 2 दिन. इस तरह से आपको एक proper day wise plan मिलेगा, right? Second, टारगेट एंड कंप्लीशन. आपका हमारे पोर्टल में आपके टारगेट्स एंड कंप्लीशन रेट्स ट्रैक होंगे, ठीक है? आफ्टर एवरी सब्जेक्ट यू कंप्लीट, यू हैव टू अपीयर फॉर अ मेंटरशिप टेस्ट, एंड ओवर एंड बियॉन्ड मेंटरशिप टेस्ट यू हैव स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज दैट यू नीड टू अटेम्प्ट, राइट? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर पोस्ट टेस्ट डिस्कशंस. सबसे ज्यादा आपको पोस्ट टेस्ट डिस्कशन से ही फायदा होने वाला है. आप समझिए, प्रीलिम्स का पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, मेंस का पोस्ट टेस्ट डिस्कशन. इन प्रीलिम्स वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड पेपर्स, वी नो व्हिच क्वेश्चंस वी हैव पुट दैट आर इजियर टू अटेम्प्ट, किसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स लग रहे हैं. अगर आपके वो सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको पोस्ट टेस्ट डिस्कशन में अवेयर कराया जाएगा कि ये चीजों को लेकर आपको नेक्स्ट टेस्ट में और ज्यादा केयरफुल होना है. सिमिलरली फॉर मेंस, राइट? एंड you can extract the maximum from our mentorship if you are heavily inclined on post-test discussions, right? There are tons and tons of students that we have, वो एक भी टेस्ट नहीं लिखते हैं, but वो हफ्ते में 2 calls mentors के साथ कर रहे हैं. We believe that that's not the ideal approach. We obviously constantly try to push students to write as many tests as possible, right? Last, mental health and motivation. Of course, our mentors are not therapists, but they put in the best efforts. They have seen these cycles repeatedly with students, and they'll put in the best effort to ensure that you are in the right frame of mind, right? एक बार थोड़ा सा और देखते हैं पर्सनलाइज मेंटरशिप में हमें दिखता क्या है. आप ये देखिए, राइट? These are students, first attempters again, reach the interview stage. Unluckily, by a very short margin, they've missed. इनका देखते हैं, राइट? सौम्या, she made close to 80 calls in the entire time that she has been here, right? Similarly, you have Hima.
and she has made close to 41 calls, right? तो इतने सेशंस, इतने मेंटर सेशंस आपको चाहिए अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक या आपकी प्रोबेबिलिटी बने एग्जाम क्रैक करने के लिए, राइट? एंड all the targets are being tracked, right? Their targets are tracked, their potential, आप potential में देखिए रैंकर लिखा हुआ है, ठीक है? माइलस्टोन्स इन्होंने क्या क्या हिट किए हैं, सारी चीजें इन्होंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत कर लिया माइलस्टोन में, इन्होंने मेंस पॉलिटी कर लिया है, एथिक्स खत्म है, राइट? All of those, every minute detail is tracked. We know exactly where you are in your preparation journey. That is what ultimate assessment program mentorship is about. Beyond the personalized mentorship, we have 5 very important centralized pillars, and essentially mentorship is about navigating these 5 pillars, right? Of course over and beyond that है, but ये 5 pillars अपने आप में बहुत crucial हो रहे हैं. Let's go through them one by one. The first one is best in class PYQ micro themes platform. बिना PYQs के आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है. गाइज, आप लोगों को एक बात समझनी जरूरी है. देर आर पैटर्न्स, राइट? देर आर पैटर्न्स दैट एग्जिस्ट इन द यूपीएससी एग्जाम. अगर आप वो पैटर्न्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, देन आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है. एवरीथिंग अंडर द सन एंड बियॉन्ड इज गोइंग टू सीम इंपॉर्टेंट टू यू, राइट? आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी. आप कोई एक चीज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, आप कोई एक न्यूज पढ़ेंगे, कोई एक कंट्रोवर्सी पढ़ेंगे, आपको लगेगा अरे वाह, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रॉडली तो ये सिलेबस से इस तरह से लिंक हो सकता है. नहीं, दैट इज नॉट द वे टू थिंक अबाउट सिलेबस. द यूपीएससी ऑफिशियल सिलेबस इज इररेलेवेंट. अगेन, द यूपीएससी सिलेबस इज इररेलेवेंट. माइक्रो थीम्स आर योर यूपीएससी सिलेबस, राइट? यू हैव क्लोज टू 20 सब्जेक्ट्स, जिनमें से 10 प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप करते हैं. In all, you have close to 450 micro themes. अगर हम micro themes को थोड़ा prioritize करें, and if we consider micro themes that have 3 or more questions corresponding to them, right? इनको हम कह सकते हैं कि ये और ज्यादा frequently पूछे जा रहे हैं. Then there are close to 300 micro themes, right? Now, these micro themes need to be exceptionally well prepared. That is the fundamental idea. एक बार हम ये प्लेटफॉर्म देखते हैं, ये देखिए, ठीक है? आपको एक मैक्रो व्यू यहां दिख रहा है, सारे सब्जेक्ट्स, एंड सारे सब्जेक्ट्स में कितनी माइक्रो थीम्स है, कितने मेंस क्वेश्चन है, कितने प्रीलिम्स क्वेश्चंस है, राइट? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, दीज आर ऑल द बिग 4 सब्जेक्ट्स, राइट? योर सेकेंड क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट्स वुड बी हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, एंड देन IR, गवर्नेंस. ये सब सेकेंड ब्लॉक में आपके फॉल करेंगे. यू कैन सी सब्जेक्ट्स दैट हैव 0 questions in prelims. आप इसमें देख सकें एथिक्स, ऑफ कोर्स इट्स जीएस पेपर 4. आपको दिखेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इनका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है प्रीलिम्स में. इंटरनल सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अगर 1-2 प्रीलिम्स में क्वेश्चंस हैं भी, दे हैव बीन अब्सॉर्ब्ड इन इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस टॉपिक्स, राइट? वी गो 1 level deep, and this is the analysis we have. Subject wise distribution, किन सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज रहा हुआ है, ठीक है? एक और लेवल डीप जाएंगे. आप देखिए, इनसाइड पॉलिटी यू हैव दीज मेनी माइक्रो थीम्स, राइट? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन है, सिटीजनशिप है, CAG है, ट्राइब्यूनल्स हैं, रिट्स हैं, इन सब से एक एक 2-2 क्वेश्चन आए. एट द वेरी एंड यू हैव पॉलिटिकल थ्योरी, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जिनसे बल्क ऑफ क्वेश्चंस आए हैं. एवरी ईयर यू हैव 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे, राइट? सो इन पे आपका डिसप्रोपोर्शनेट फोकस होना चाहिए, राइट? एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. यू कैन एक्सपैंड दीज व्यूज फर्दर. एक माइक्रो थीम पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. यू कैन एक्सपैंड फर्दर एंड गेट टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस एज वेल, राइट? This platform is the heart and soul of your preparation. Hope this idea gets across, right? Pillar number 2, सबसे important pillar again, समाचार मंथन is our current affairs program. Essentially, हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि every week you need to spend 4 to 5 hours on current affairs lectures, and that's it. Your Hindu Indian Express is taken care of by us, right? And this is how you are going to revise your static as well. Please understand this very clearly. UPSC में
प्योर स्टैटिक माइक्रो थीम्स बहुत कम है, हार्डली 20 होंगे, राइट? ऑल द अदर माइक्रो थीम्स हैव करंट अफेयर्स लिंकेजेस एज वेल. अगर हम गवर्नर की बात करें, अगर हम स्पीकर की बात करें, ये ऊपर ऊपर से स्टैटिक दिखता है कि ठीक है, हमने कोर बुक्स में भी, हम लक्ष्मीकांत में भी ये पढ़ रहे हैं. नहीं, इनका जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो करंट अफेयर से डिराइव होके पूछा जाएगा. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपको करंट अफेयर्स में टैब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? यूपीएससी, if I have to rephrase it, UPSC is about contemporary issues, right? Not current affairs, not static. ये एक distinction, demarcation, एक standard चले आ रहा है, but a more precise way of expressing what UPSC asks is by saying that it talks about contemporary issues. Issues पहले के भी हो सकते हैं, but वो आज भी relevant हैं, right? So current affairs becomes very important. In Samachar Manthan, we do all the grind work. We bring topics that have the highest possibility of being asked in the exam, both prelims and mains, and we ensure that you are very well equipped when it comes to your current affairs. आपके weekly mini tests होंगे, 5 questions for mains, 20 questions for prelims, and that helps you stay in proper form, right? यहां आप देख सकते हैं, last year we had covered these 3 summits, and in तीनों summits से prelims में questions आए हैं, right? These are the exact articles that we had published. Summits तो बहुत सारे होते रहते हैं, ठीक है? हमने selectively जो हमें summits important लगे हमने वो cover किए हैं, and you can see that UPSC को भी इनमें बहुत ज्यादा importance दिखी है. That is the level of accuracy we are trying to chase when it comes to Samachar Manth. The third pillar, Smash Mains ecosystem. Smash Mains में आपको क्या मिलता है? Smash PYQ lectures that help you with PYQ answer writing. These are close to 60 lectures in all, and they'll go GS wise and within GS micro theme wise. आपको सारे questions live attempt करने का मौका मिलेगा, right? 600 PYQs live. Then you have an answer writing course that touches on the broader aspects of answer writing. आंसर ए आंसर बी से कैसे डिफरेंट है, किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको कैसे एनरिचमेंट ऐड करना है, यू हैव दैट कोर्स इंक्लूडेड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट. थर्ड, पीवाईक्यू मॉडल आंसर्स. थर्ड, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स, राइट? थर्ड, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फाइनली, you have test series where again we are trying to maximize the hit ratio all the time. You have close to 80% overlap with the UPSC mains paper, and you have model answers that serve as notes in themselves, right? इसी test series के model answers हैं, and a lot of topics, you have to rely on model answers to prepare for. Example, GS3 के बहुत सारे topics हो गए. इनसे स्टडी मटेरियल से ज्यादा बेटर होता है कि आप मॉडल आंसर्स के थ्रू इन्हें पढ़ें, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड दीज नुआंसेस वंस यू गेट टू दैट स्टेज. अगर हम थोड़ा सा डीप में आंसर राइटिंग की बात करना चाहें, लेट्स कॉन्ट्रास्ट 2 कॉपीज ऑफ AI राउंड शक्ति दुबे जब उनकी AI 1 आई थी, and the one that she had written a year back when she reached the interview stage, right? There is a stark difference. It's the same question that she has attempted. Code of ethics versus code of conduct की बात हो रही है, right? These are the 2 attempts. In the first attempt, you can see that civil servants are considered to be the steel frame of India, as highlighted by Sardar Patel. They form the permanent executives, and they are responsible for ensuring continuity in administration. इस तरह से लिखा है, आप यहाँ पे एक sun chart देख सकते हैं, right? Look at the one that got her AR1. This is the attempt, right? You can see that the content density is much higher. The presentation is far more smooth, right? इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, and आपको बहुत striking चीजें मिलेंगी. She has quoted 2 scholars in this answer. She started the introduction with a scholar, with a thinker, and then again Potter Stewart. आंसर के बीच में भी thinkers quote किए गए हैं, examples quote किए हैं. यू सगेयम, इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को कोट किया है, राइट? सो अ लॉट ऑफ एनरिचमेंट हैज हैपेंड इन दिस 1 year टाइम,
and that's when she gets AIR1, right? She topped the ethics paper as well. तो आपको भी इतना rigor लगाना जरूरी है to ensure a top rank, to ensure your name in the list, right? These are the things that we are going to work on when you are with us. Pillar 4, the dominate prelims. Prelims has become very tricky. The dominate prelims ecosystem ensures that you have all the necessary tools to clear the prelims exam. सबसे पहला elimination course. You need to be aware of the different elimination techniques, the different logical eliminations that you can go about to increase your attempt in the UPSC paper, right? So यहाँ पे 20 odd strategies and various other patterns through PYQs cover होंगे, जिससे आपको additional tools मिल रहे हैं to attempt questions. देखिए prelims में ऐसा होगा, आपको 20 questions से ज्यादा आते नहीं होंगे, 20 आंसर्स से ज्यादा आपको पेपर जो है वो परफेक्टली नहीं आता होगा, एक दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, इस तरह से आपका हिसाब चल रहा होगा. सेकंड, 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट प्लस डिस्कशंस. वी गेट इन द जोन, वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. हम नाउ इट्स ऑल अबाउट रिविजन थ्रू क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चंस आप गलत करिए, वो कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करिए होलिस्टिकली, राइट? अगली गलती करिए, दोबारा से होलिस्टिकली रिवाइज करिए, अगली गलती करिए, दोबारा से होलिस्टिकली क्वेश्चन आप गलत करिए, फिर उसको रिवाइज, आप क्वेश्चन गलत करिए एंड देन रिवाइज दैट टॉपिक. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर इन दिस फेज, राइट? वो हो गया, किताबें पढ़ने वाला, नोट्स पढ़ने वाला टाइम इसके पहले तक था, अब क्वेश्चंस गलत कर करके सीखने का टाइम आ गया है, राइट? बाय द टाइम यू आर फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन प्रीलिम्स, दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू गो. Then you have revision classes, and of course you have full length tests, you have full fledged tests जो आप once a week attempt करेंगे and उनके post test discussions आपके साथ होंगे. Prelims के लिए let's make it real में हम लोगों ने आपको properly ये दिखाया है, the fact that each and every subject is divided into 3 micro themes, the ones that are trending, जिस पे UPSC सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है. अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, बजट फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई फंक्शंस, इन्होंने सब्सटैंशियल इंक्रीज देखा है इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? सो दीज माइक्रो थीम्स आर गोइंग टू बी द फोकस एरिया. इन पे आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस करना है और इनको अच्छे से कवर करना है आपको, राइट? यू नीड टू ऑल्सो हैव अ लिस्ट ऑफ NYQs, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस. कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी चीज आपको हाई प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, ठीक है? माइक्रो थीम्स तो हो गए, अब आपको टॉपिक्स चाहिए ना, अब आपको टॉपिक्स भी पता होने चाहिए. सो दिस लिस्ट इज अबाउट दोस टॉपिक्स दैट हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग इन दी प्रीलिम्स, एंड ये पूरा आपका एक प्रॉपर प्रीलिम्स का मॉड्यूल रेडी करता है. पिलर नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिविल्स डेलीज नोट्स आर्किटेक्चर. नोट्स आर वेरी क्रूशियल. हर एक रैंकर आपको यही बोलेगा कि अगर आपके नोट्स रेडी नहीं है तो आप लास्ट मिनट रिवीजन नहीं कर सकते हैं, आप लास्ट मंथ आपको कैसे स्पेंड करना है वो स्ट्रैटेजी आपकी फाइन ट्यून नहीं हो सकती है, एंड अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर एग्जाम. वी हैव सेपरेट नोट्स फॉर सेपरेट स्टेजेस, राइट? स्मैश एक्स फैक्टर नोट्स 15 बुकलेट्स, ये मेंस के लिए है. फ्लैश नोट्स 10 सब्जेक्ट्स प्लस 10 करंट अफेयर्स थीम्स, ये प्रीलिम्स के लिए है. एंड बर्निंग इश्यूज इज आर मंथली मैगजीन, मंथली रिविजन मैगजीन, राइट? These notes are exam ready. A lot of notes that you'll find, right, वो foundation के जो notes होते हैं, they are just core books compressed and another version of the core books itself. Our notes are not on those lines. अगर हम थोड़ा सा deep जाएं, X Factor notes में आप देखेंगे it's all PYQ oriented, PYQ micro themes oriented. It is completely PYQ micro themes oriented. सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट डेप्थ. Not a single generic or unsubstantiated point. Every sentence earns its place, right? आपको जो sentences दिखेंगे वो इस तरह के होंगे. You have a term in bold followed by a sentence, example, substantiation, right? आपको इस तरह से ये पूरा ब्लॉक आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने आंसर्स में. That's how you are going to write the body section of your mains answers. And this is where these notes come in the picture, right? Diagrams, graphs, आप देख सकते हैं. To bring in more clarity, you have diagrams, graphs, and almost
all micro themes are covered in these X Factor notes, right? बहुत सारी कोर बुक्स में माइक्रो थीम्स रह जाती हैं, बट एक्स फैक्टर नोट्स में दैट्स द गैप इट इज फिलिंग. नाउ लेट्स कम टू प्रीलिम्स नोट्स. प्रीलिम्स में द आइडिया इज दैट आपको बहुत सारी चीजें रटनी होती हैं, बहुत सारी स्मॉलर फैक्चुअल डिटेल्स आपको ध्यान रखनी होती है. मेंस में अगर आप कुछ कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भूल जाएं तो भी आप अपना आंसर मैनेज कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ रिटन आंसर, इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर. प्रीलिम्स में तो आपको फैक्चुअल डिटेल्स याद ही रखनी है, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन फंस जाएगा एंड यू विल गेट दैट क्वेश्चन इनकरेक्ट, राइट? आप देख सकते हैं द एंटायर फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट फ्रॉम कोर बुक्स में वो 33 पेजेस का है, बट फ्लैश नोट्स में इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स it's broken down into just 4 pages, right? So आपके पास जो टेबल है उसमें फीचर्स हैं, उसमें सेकंड कॉलम में एक्सेप्शंस हैं, एंड देन यू हैव लॉज पास्ट, राइट? तो इन 3-4 कॉलम्स में फंडामेंटल राइट्स को पूरा ब्रेक किया है एंड इट इज डन विथ, राइट? सिमिलरली यू हैव इमरजेंसीज, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट, all of those aspects are covered in flash notes. बर्निंग इश्यूज में अगर हम आए, यूपीएससी जिन टॉपिक्स के अराउंड डबल डाउन करता है, दे आर वेरी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, इट्स अ फेवरेट टॉपिक फॉर यूपीएससी. इट इज अ फेवरेट बिकॉज इट कट्स अक्रॉस 4 डिफरेंट डोमेन्स. द फर्स्ट वन, फूड सिक्योरिटी. सेकेंड, फॉरेन पॉलिसी. थर्ड, फिस्कल पॉलिसी. द फैक्ट दैट हम इतना यूरिया सब्सिडाइज कर रहे हैं, it has a substantial bill. And last, it has environmental concerns. Through burning issues, we want you to understand these nuances, and hence you have the different dimensions approach, right? तो यहाँ पे dimensions सारे दिए होंगे. It would cut across GS 1, 2, 3, 4, and you will have PYQs associated with each of them, and it becomes a delight to read. You will grasp the concepts in a very crisp, clear manner. आपके पास डेली टारगेट्स होंगे, डेली ट्रैकर्स होंगे, एंड दिस इज द इकोसिस्टम दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक यूपीएससी इन 1 year. It maximizes your chances of clearing UPSC in 1 year. इन सारी डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज पे साथ साथ काम हो रहा है. आप सिर्फ एक दिन में एक लेक्चर देख रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग समथिंग दैट यू वांट टू डू. दैट्स नॉट हाउ यू आर गोइंग टू एस थ्रू दिस एग्जाम. So get in touch with us. आपके जो भी doubts हैं, आपकी जो भी queries हैं, get in touch with us on this number and we'll be happy to help you. Thank you.